Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Leo Ascendant and the predictions for the month of August 2023. So for your Ascendant, the Ascendant Lord Sun is going to remain in the 12th house till 17th of August, and time frame till the middle of August will remain challenging. It will be good to engage yourself in charity and meditation in the first half of August, especially till 17th of August. After this, from 18th of August to 31st of August, the scenario will change because the ascendant lord will move into its own sign in the first house. Sun is going to remain here for the next 1 month from 18th of August to 17th of September. And while it is going to give boost to your health and provide vitality, it will also give you some minor health issues like a headache problem. You also need to keep your ego in check and avoid arguments with your spouse during the time frame, because the opposition of Sun and Saturn is going to take place, and it would mean arguments with your business partner and spouse in the second half of August, and they need to be dealt with a cool and calm mind. Mercury is the lord of second and 11th house for you, and both of these houses are considered to be money generating houses. Its conjunction with Sun in the second half in your first house would ensure that you will get money making opportunities from 18th of August to 16th of September. People who use their bodies, such as models, actors, athletes, they will derive maximum benefit from this kind of placement, because Mercury's conjunction with the first house lord would mean that those people who use their physique are going to get the utmost financial benefits. You will also derive a lot of benefits from your social network and friends during the second half of August. So this month is all about putting in a lot of self efforts and generating gains from them. One thing that you should note is that a lot of planets energies are getting associated with the first house. Not only Sun and Mercury are combining here, both of them are friends and Sun is in its own sign, but Saturn is also going to aspect the first house and Jupiter is also going to aspect the first house. So in total, four planets energy is going to get accumulated in the first house. So this month is all about your own development and the kind of efforts that you can make in this time frame of 17th of August to 16th of September, and you will accordingly derive the gains because Mercury is also involved here, so both of your money houses will also get activated. The fifth house lord Jupiter is going to be positioned in the house of luck and is going to aspect your first house as well as its own house, which is the fifth house. So this is the time to plan for a child because Jupiter is aspecting both these houses and is going to protect any conception that takes place during this time frame, and it will continue till April 2024. So you should try to take advantage of this benefic position of Jupiter, and if you are a student then you are also going to get benefited throughout the next 1 year because Jupiter itself is located in the house of higher education. So all those people who are planning to get admissions in universities will see success in their endeavors. Jupiter also rules over your speculative tendencies, and all those who are engaged in the speculation on the stock market will see a very favorable time during 17th and 18th of August, and again on 27th and 28th of August. For students, 17th and 18th August is the ideal time frame to appear for the competitive exams. Mars is going to be in your second house from 19th of August and is going to create money generating opportunity for you from real estate and lands. So if you are engaged in the sectors that is related to petrochemicals, specialty chemicals, defense sector, then you will see an increased cash flow. The flip side of Mars placement here is that you need to avoid aggression while talking with your family members, and your speech may fuel some kind of a fight with your family members and you may end up hurting them with the usage of aggressive words. So think hard before you speak in the second half of August. Venus is going to be in a retro position in the 12th house. Venus rules over your profession and you will find the going tough, especially in the first half of August because both Sun and Venus will be placed here. But exception to this would be people who work in MNCs, hospitals, or not-for-profit sectors. Or if you are placed in a foreign country, then also work-wise, this will be a very good time for you. If you want to rise and shine in your profession, then
time from 24th of August till the end of month is a very good time frame. Now there are also certain days where you need to be cautious and you should avoid taking any key decisions and also avoid getting into arguments with people. So for your ascendant, the days in August where you need to be cautious are 1st and 2nd of August, 5th and 6th of August, and 29th and 30th of August. So just be very cautious during these 6 days. So if you look overall, this month is all about personality development, developing your skill set and earning money through them, because Mercury, which is the lord of both second and 11th house, is also going to be in the ascendant with ascendant lord. So overall, this is going to be a very good time frame for you to make money. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप लग्न स्वामी को देखें तो सूर्य 17 अगस्त तक 12वें भाव में बैठे रहेंगे शुक्र के साथ। तो 17 अगस्त तक का समय आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि लग्नेश का 12वें भाव से जाना यानी व्यक्ति को अकेलापन महसूस कराता है और व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कोई है नहीं। तो यहाँ पे इसको काउंटर करने का तरीका है कि आप चैरिटी में अपने को एंगेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और 18 अगस्त से जब सूर्य लग्न स्थान में चला जाएगा तो फिर सिनेरियो आपका बदल जाएगा। 18 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य का प्रथम भाव में बैठना अपनी राशि में, यानी कि आप में काफी ऊर्जा आएगी, आपको काफी हेल्थ देगा ये सूर्य। देखिए, सूर्य के लग्न में बैठने से कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे व्यक्ति को सरदर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है और उसको अपनी ईगो को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये सूर्य लग्न में हमेशा व्यक्ति को अहम जगाने का कार्य करता है। और चूंकि यहाँ पे सूर्य और शनि की आपस में प्रतियुति बन रही है, तो आपके आपके बिजनेस पार्टनर या पति या पत्नी के साथ भी मतभेद होने की संभावना है, और इस समय में कोई भी आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ये ऐसा समय है जब आप उनसे किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा भी टालिए। बुध आपके लिए द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी हैं और वो भी लग्न स्थान में ही बैठे हुए हैं। दोनों ही घरों से आप धन देखते हैं, और यहाँ पे सूर्य के साथ युति होना इसका एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि 18 अगस्त से 16 सितंबर के समय में आपको कई मौके मिलेंगे पैसा कमाने की दृष्टि से। जितने भी लोग अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोफेशन में, यानी एथलीट्स हो गए, फिल्म एक्टर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ये सब लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है पैसा कमाने की दृष्टि से। ये समय में आप अपने मित्रों के साथ या सोशल नेटवर्क के साथ जुड़ के भी लाभ कमाएंगे। ये महीने में सूर्य और बुध प्रथम भाव में बैठे रहेंगे और उनको शनि 7वीं दृष्टि से और गुरु 5वीं दृष्टि से देखेंगे। तो प्रथम भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हो रही है, तो आपका प्रथम भाव बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और इसीलिए इस महीने में आपकी स्किल सेट्स डेवलप करने का बहुत अच्छा समय है। ये पूरा समय ही ऐसा है जब आप अपने आप को जानेंगे और आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का भी मौका मिलेगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें जो भी आप स्किल सेट बनाएंगे वो आपके काफ़ी काम आएंगी। पंचम भाव का स्वामी गुरु नवम भाव में भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, और यहाँ से वो पंचम दृष्टि से प्रथम भाव को और नवम दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा। तो दोनों ही भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वो इनको संरक्षण करने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है संतति प्लानिंग की दृष्टि से, क्योंकि गुरु की दृष्टि अप्रैल 2024 तक बनी रहेगी। तो अगर आप इस समय में कुछ भी ऐसा प्लान करते हैं तो आपका भी प्रोटेक्शन होगा और आपके बच्चे का भी प्रोटेक्शन ये गुरु दृष्टि से ही करके देगा। चूंकि गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, तो शिक्षा भी और शेयर बाजार भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए अच्छा टाइम देखेंगे तो 17 से 18 अगस्त और 27 से 28 अगस्त, ये 4 दिन बहुत अच्छे हैं स्पेक्यूलेशन की दृष्टि से। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना चाहते हैं, कुछ परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो 17-18 अगस्त ये दोनों दिन बहुत अच्छा समय है। मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे 19 अगस्त से लेके, और ये भी आपके लिए पैसे कमाने की नए तरीके खोजेंगे। तो अगर आप ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो आपके पैसा कमाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं ये अगस्त के महीने में। खास करके द्वितीय भाव जो अगस्त का है वो पैसे की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस या स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी आपको एक बढ़ता हुआ कैश फ्लो दिखाई देगा अगस्त के दूसरे भाव में। यहाँ पे जो एक बुरी बात कही जा सकती है मंगल के प्लेसमेंट से, वो ये है कि व्यक्ति में अग्रेशन लाता है, खास करके उसके बोलने में। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप जब भी बात करें तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि
आप अपने शब्दों से अपने परिवार को हर्ट कर दें और आपकी जो भाषा होगी उस पर आपको काबू रख के चलना पड़ेगा अगस्त की द्वितीय हाफ में। शुक्र मैंने जैसा पहले बताया था कि सूर्य के साथ कंबाइन होंगे और फिर सूर्य इनका साथ छोड़ के अगले भाव में चले जाएंगे, तो शुक्र यहाँ वक्री अवस्था में पूरे महीना भर बने रहेंगे। शुक्र का 12वें भाव में प्लेसमेंट चंद्र की कर्क राशि में, जो कि एक पूर्ण जल राशि है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि भले ही शुक्र वक्री अवस्था में हो लेकिन यहाँ पे 12वें भाव में शुक्र हमेशा ही धन देने का काम करते हैं। तो आप देखिए किस तरह से धन के कॉम्बिनेशंस जुड़ के आते हैं। यहाँ पर लग्नेश का भी द्वितीय और 11वें भाव के साथ युति करना और शुक्र जैसे धनदायक ग्रह का 12वें भाव में बैठना, यानी ये सब तरफ से धन कमाने वाले कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में बनेंगे इस समय में। अगर आप शुक्र से ही जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, यानी आप फैशन डिज़ाइनिंग में हैं, व्हीकल से जुड़े बिजनेस में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में है, तो भी ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। खास करके पहला हाफ जो है अगस्त का, जिसमें सूर्य और शुक्र दोनों 12वें भाव में बैठे रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एमएनसी से जुड़े हुए हैं या फिर आप अस्पताल में काम करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन या चैरिटी से जुड़े हुए हैं, या आप स्वयं कहीं फॉरेन कंट्री में इस समय में, तो ये प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। खास करके 24 से लेकर 31 अगस्त तक का समय कार्यस्थल पर तरक्की करने के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए, और ये वो दिन है जब आपके चंद्र 6 8 12 से गुजरता है, तो इस समय में व्यक्ति के निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस अगस्त के महीने में जब आपको सावधान रहना है वो दिन है 1 और 2 अगस्त, 5 और 6 अगस्त, और 29 और 30 अगस्त। तो अगर आप कुल मिला के देखिए तो ये महीने में चूंकि 4 ग्रहों की एक साथ ऊर्जा प्रथम भाव में इकट्ठी हो रही है, तो आप अपने आप को कितना डेवलप कर पाते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके अलावा पैसा कमाने के भी बहुत ही तगड़े योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं अगस्त के द्वितीय हाफ से लेकर सितंबर के फर्स्ट हाफ तक। तो ये आपका इस महीने का प्रेडिक्शन है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।